Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain very important question on the basis of board examinations as well as NEET and JEE. So today's question is very important question, and the question importance of this question in board exam is 99.96%. હું તમને બહુ ડિફરન્ટ વેથી આખો એક્ઝામ્પલ સમજાવું છું. જસ્ટ ફોકસ ઓન ધીસ. Zero order reaction. In today's lecture we will explain integrated rate law. Integrated rate law. What is in integrated rate law? We will explain this with the help of zero order and first order reaction. So integrated rate law for zero and first order reaction. Okay, what is this integrated rate law? We will explain in this question. Okay, so left hand side, for zero order reaction describe integrated rate law, and this is first order reaction describe integrated rate law. So we will explain this on this way. Okay, just see here. 1 mole reactant R give us product P, same as reactant R gives us product P. What is the definition of zero order? Just see. In differential rate law, power is zero of concentration, that is zero order reaction, while in differential rate law power is 1 of concentration, it is first order reaction. So the power is 0, then it is zero order, while power is 1, it is first order. So we will explain this with the help of this equation. Just see. Differential rate law, rate is equal to K R raised to 0, because this is zero order reaction, while in this side rate is equal to K R raised to 1, because this is first order reaction. Power is 1 in first order, power is 0 in zero order. Okay, now what is rate? dr by dt is equal to K R raised to 0 is equal to 1. dr by dt is equal to K into R. We can write this on this way also. dr is equal to minus K into dt. ये माइनस यहाँ पर सामने गया. dr by R is equal to minus K into dt. Again ये dt सामने गया. ठीक है. Now we will do integration of this differential rate law. This law is known as integrated rate law. So we integrated this value dr. We will integrated this dt. We cannot able to integrated K because K is constant, and integration is not acceptable for constant. So integration of this, integration of this. Okay, this is differential rate law. चलिए अब देखते हैं dr का इंटीग्रेशन क्या होता है. मालूम आपको? dr का इंटीग्रेशन होता है r. k को ऐसे ही रखिए. dt का इंटीग्रेशन होता है t प्लस c, where c is equal to integration constant. क्लियर? सामने यहां पर हम करते हैं dr by r का
इंटीग्रेशन यहां पर होता है ln r और dt का इंटीग्रेशन होता है t प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। अगेन c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए अभी हम क्या करते हैं, चलिए अगर हम अज्यूम करते हैं t इज इक्वल टू 0 टाइम होता है तो r इज इक्वल टू क्या होता है, r0। t इज इक्वल टू 0 तो r इज इक्वल टू r0 यहां पर हो गया। सेम एज यहां पर भी करिए, t इज इक्वल टू 0 तो यहां पर सेम रहेगा, r इज इक्वल टू हम लेंगे r0। चलिए उनको हम इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, 2 इंटू 1। तो यहां पर क्या रहेगा, r की जगह आ जाएगा r0, t मानी 0 हो गया और ये c हो गया। सेम पुट इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए 2 इंटू 1 रखेंगे तो r0 इज इक्वल टू c, यहां पर r की जगह हम रख देंगे r0 और ये हो गया c। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 पुट इक्वेशन नंबर 3 इंटू 1। सेम एज यहां भी पुट इक्वेशन नंबर 3 इंटू 1। चलिए अब यहां पर क्या होता है, इस 3 को यहां पर हम रख देते हैं, यहां पर मिलेगा r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0 और इसको अगर ऊपर रख देंगे यहां पर आ जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारे लिए। चलिए अभी हम क्या करते हैं, देखिए अभी हम kt को सब्जेक्ट बनाते हैं, kt तो ये हो गया r0 माइनस r, लेफ्ट हैंड साइड वाला r राइट साइड में गया तो माइनस r हो गया। सो k इज इक्वल टू r0 माइनस r बाई टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। बहुत ही अच्छी तरीके से इक्वेशन याद रख लीजिए। अगर हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k फाइंड करना है तो हम इस वैल्यू का, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में। चलिए यहां पर हम करते हैं, kt को सब्जेक्ट बनाते हैं, ln r0 माइनस ln r। अगर यहां पर ये माइनस है, अगर माइनस को हम रिमूव करते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा, लॉग का रूल है। k को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, हो गया 1/d ln r0 बाई r। अगर हम ये r0 को रिमूव करते हैं, सॉरी ln को रिमूव करते हैं, लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम सब जानते हैं 2.303 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन आंसर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की वैल्यू, जीरो ऑर्डर के लिए k ये रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k ये रहने वाला है। इसका मैं न्यूमेरिकल आपको लर्न करवाऊंगा तब आप अच्छी तरीके से ये सब समझ सकेंगे। पर आपको क्लियर हो रहा है पॉइंट? अगर क्लियर नहीं भी हो रहा है तो आप वीडियो फिर से रिपीट कर दीजिए। यूट्यूब में यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है लेक्चर लेने की और लेक्चर पढ़ने की भी, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट हम लाइव में पढ़ते हैं और अगर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है तो उसको रिवीजन करने के लिए हमें फिर से सर के पास जाना होता है। बट ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, आपको रिवीजन करने के लिए सीधा वीडियो थोड़ा पीछे कर देना है, आप फिर से ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकेंगे। सो इफ यू वांट टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, रिपीट द वीडियो ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार कर सके वो कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल एड न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस। दिस इज हाफ टाइम पीरियड। What is half time period? Just we will see. Okay, concentration of reactant becomes half
is initial concentration. This time is known as half time period. चलिए ये बात मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिएगा अभी आप अच्छी तरीके से। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन समझ लीजिए R0 है। अगर उस कॉन्सेंट्रेशन से R0/2 ये हो जाए, हाफ हो जाए कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके लिए जो टाइम चाहिए होगा उसको बोलते हैं हाफ टाइम पीरियड। यानी ये हो गया R = R0/2। चलिए इसकी ये जो वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर 5 में रख देता हूं। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 5। चलिए 5 में मैं रख दूंगा R की जगह, तो क्या रहेगा देखिए, R0 - R0/2 और T की जगह हमने ये कर दिया T1/2। ओके, R की जगह R0/2, T की जगह T1/2। अगर T1/2 को हम यहाँ पर सब्जेक्ट लेते हैं, ये एलसीएम ले लीजिए, 2R0 - R0 यानी बचा R0, ये ऊपर से नीचे आ गया 2 और ये K सामने से आ गया। अच्छी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, T1/2 = R0/2 के। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाफ टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब सेम ही बात हम यहाँ पर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये डेफिनेशन यहाँ पर रिपीट आएगी, मैं लिख नहीं रहा हूं। चलिए तो आप समझ जाएंगे, R0 से कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, R0/2, ये रहा R। ओके, अभी देखिए ये जो है ना, ये हमें ऊपर के इक्वेशन में यहाँ पर रख देना है, ठीक है। ये R की जगह हम रख देंगे R0/2। यहाँ पर क्या रहेगा, K = 2.303/T1/2 log R0 ऐसे ही रहा, और ये R की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर R0/2, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, 2.303, ये यहाँ पर K मैंने ले लिया, T1/2 को लेफ्ट साइड में जाने दिया, log ये R0 कैंसिल हो गया, नीचे जो 2 है वो ऊपर जाएगा, हो जाएगा log 2, 2.303 log 2.301/K, और ये आंसर आ गया 0.693/K। T1/2 is equal to, very important concept. So if we want to find half time period for first order reaction, this is the answer, T1/2 is equal to 0.693/K. Is it clear? So first order reaction के लिए यह T1/2 की फॉर्मूला है, और ये जीरो ऑर्डर के लिए T1/2 की फॉर्मूला यहाँ पर रह रही है। चलिए अभी मैं आगे जा रहा हूं, थोड़ा और डिफरेंस मुझे देना है। आप सबको मैं ध्यान से बता देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 4 दोनों साइड देख लीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4, ये मैं फिर से लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। देखिए इक्वेशन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट फिर से आ रहा है, देखिएगा अभी यहाँ पर इक्वेशन 4 मैंने जो आपको दिखाया था वो ये वाला था, R = -KT + R0, ठीक है। और इस साइड का ये वाला था ln R = -KT + ln R0। ओके, चलिए इस इक्वेशन को हम y = mx + c से कंपेयर करते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ y = mx + c। आप सब जानते हैं लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ होता है वो y वर्सेस x का होता है। तो यहाँ पर y क्या है, तो यहाँ पर y है r, ओके, और यहाँ पर x क्या है, तो वो है t। r वर्सेस t का हम प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो माइनस बता रहा है ये स्लोप है, पर माइनस में अगर स्लोप आता है तो हमारी लाइन है ना वो ऊपर से नीचे आ रही है, वो श्योर है। और यहां पर आ गया स्लोप = -K, ठीक है। स्लोप क्या रहा यहाँ पर -K, और इसको क्या बोलते हैं, सी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या रहेगा, R0।
ठीक है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये ग्राफ हमने किस किस के बीच में ड्रॉ किया, r वर्सेस t में किया। अच्छा, उसका स्लोप क्या आया, स्लोप आया माइनस के। ओके, इसका इंटरसेप्ट कौन सा आया, इंटरसेप्ट आ रहा है R0। ओके, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले मैं कैलकुलेशन के लिए ln को log में कन्वर्ट कर देता हूं। तो log में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2.303 से यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए 2.303 log R माइनस के टी प्लस 2.303 log R0, ये यहां पर हो गया। अभी देखिए, मैं इस पूरे इक्वेशन को अगर 2.303 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पर क्या रहेगा, log R माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log R0। ओके, चलिए अभी इस इक्वेशन को हम फिर से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। y x, ये रहा y मतलब log R और ये x मतलब रहा t, ये 0। ये स्लोप नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसीलिए लाइन ऊपर से नीचे रहेगी। स्लोप क्या रहेगा, माइनस के बाई 2.303 और ये रहेगा इंटरसेप्ट log R0। ठीक है, तो अभी दोनों के बीच में डिफरेंस कौन सा आया, डिफरेंस ये रहा। देखिए ग्राफ किस किस के बीच में यहां पर रहा, log R वर्सेस t। स्लोप की वैल्यू क्या रही यहां पर, माइनस के बाई 2.303 और ये इंटरसेप्ट यहां पर कौन सा रहा, log R0। So this is the basic difference between zero order and first order reaction, and the example for zero order reaction is photosynthesis process is zero order reaction and radioactivity process is first order reaction. So this is the basic difference between zero and first order reaction. You all have to remember both these question. बट मैंने आप सबको ये जो करवाया ना वो डिफरेंस के मोड पर करवाया है। सो डिफरेंस के मोड पर अगर ये होगा तो अच्छी तरीके से मार्किंग्स हम ले सकेंगे। बट अभी इसके मैं न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा आगे के लेक्चर में। अच्छी तरीके से सभी न्यूमेरिकल करने होंगे क्योंकि इस न्यूमेरिकल भी बहुत ही मोस्ट टाइम पे रहने वाले हैं। फॉर्मूला अच्छी तरीके से आप सबको प्रिपेयर करनी होगी ताकि कोई भी इश्यूज इसमें आगे जाकर क्रिएट ना हो सके। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको समझ में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, कोई इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो रिपीट करके आप ये सभी मैटर फिर से देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।